हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप जरा विवेक श्रीवास्तव जी से आंसर ले लेते हैं, तब से वो बेचैन हो रहे हैं बोलने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, व्हेन मोहन भागवत टॉक्स अबाउट जी राम राज्य, जी व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी because why talk of Ram Rajya? Why does he want to talk of Ram Rajya? What do you think Ram Rajya is? What is Ram Rajya? And Ram is there, you follow him in your house, in your personal life. No, I don't want to know what is Ram Rajya. Why should I know? I have a constitution. It was given to me. It was framed by Dr. Ambedkar and the drafting committee of the constitution. Okay. It lays down the laws. It will give me the punishments if I am not correct. So why should I know Mr. what is the Srivastava, Sharia this or what is the Ram constitution that you're Rajya? Why should talking I know? about, I don't think you've Why read should it I? properly. Because had you read it properly, Yes. you would have found a picture of Lord Ram that symbolizes. ये देखो तो अब उसमें फोटो तो देखिए, मुझे क्या दिखा रहे? डोंट जस्ट वेव द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड इट। नहीं फोटो बहुत सारी है, फोटो सिर्फ राम की नहीं है, फोटो बहुत सारी तो है। बात कीजिए ना फिर राम राज्य का। इफ यू डोंट नो अबाउट राम राज्य, हाउ आर यू नो participating in this discourse? नहीं क्यों? Why should I know about राम राज्य? Why should I know about शरिया? कल आप बोलेंगे साहब शरिया भी पढ़ लेना, उसमें से शरिया के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और देखो साहब तो ये थोड़ी ना कोई बात है, हम क्यों पढ़ें? नहीं, शरिया का कौन सा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए। उसमें वेरियस क्लॉजेस को बताइए ना, शरिया का है कॉन्स्टिट्यूशन में? हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना सर। तो मोहन भागवत इज टॉकिंग अबाउट संविधान, he is talking about संविधान, he is talking about tolerance, pluralism, diversity. मोहन भागवत can talk about anything. ने वो जो मर्जी बात करें। Then what is your objection, विवेक श्रीवास्तव? आप जो एक मिनट, अगर आपकी 1 मिनट, लिसन टू मी सर, 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, मैं बोल रहा हूं, when you get into an argument with someone, you must have a fundamental objection. जैसे मैं जब आपसे बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्शन होता है पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, कि आप कांग्रेस को आप इधर बोलते हैं कि करप्ट है, इनेप्ट है, और फिर बोलते हैं कि नेशनल लेवल पे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मोहन भागवत के कमेंट पे और ये जो रिमार्क्स है उनके, उसमें आपका ऑब्जेक्शन क्या है, पहले तो वो बता दीजिए। जी देखिए, पहला ऑब्जेक्शन है कि ये एक डिस्प्यूट था हमारे देश के कुछ लोगों के बीच में। इट वॉज एन इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल ऑफ दिस वेरी नेशन। सो वेयर डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कम? The judgment was given by the honorable court. The court belongs to this nation. Where is the concept of the second independence? And it was fought for a long time. The court came to some conclusions and finally a verdict was given. The verdict was happily accepted by both the communities who were trying to, counter each other in the court of law. So where does the second independence come? What is he trying to say? Cultural renaissance, what does that mean? Is he trying to say that the government of India for the last 70 years and before that was trying to stop somebody from worshipping? My eminent friend who is very senior to me, my political senior, for whom I have a lot of respect, Professor Rakesh Sinha is over here. He has a communist background from his father's side. So for the last 70 years in his household, nobody was worshipping, nobody was going to temple, no gurukuls were there. What are we talking? It was a free country, it will remain a free country. This is not about freedom, Vivek Srivastava. You are catching the wrong end of the stick again. Why do you always do this deliberately? No, it is not. No, do you do this deliberately? Dispute of the court. मुझे लगता है आप you are no 1 minute. I think you are no 1 minute विवेक श्रीवास्तव, मुझे लगता है आप ये हर रोज ऐसी कुछ बातें कर देते हैं so that the argument keeps happening between the anchor and विवेक श्रीवास्तव। ऐसा क्यों बोलते हैं? He is talking about a different context. वो कल्चरल रीअवेकनिंग की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप उसको सेकेंड इंडिपेंडेंस। हर्षवर्धन जी, जो लोग कल तक बोल रहे थे कि रोटी कहां है, रिलीजन पे फोकस नहीं, रोटी होना चाहिए, आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि राम मंदिर से ही लाइवलीहुड भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी। एक बात मैं प्रणेश अक्सर कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, जिस समाज में, जिस देश में अपने माँ बाप, अपने आराध्य को दरिद्र रखने में सुखानुभूति मिलेगी, वो समाज, वो देश, वो व्यक्ति, वो परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। भारत ने लंबे समय तक अपने आराध्य, और ये राम का देश है, ये किसी के कहने से कोई राम राज्य और राम की परंपरा नहीं होगी, ये राम का देश है। और जो लोग फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर बताने लगते हैं डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी, उनको अंदाजा होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य में आक्रमण किया, आक्रांता है, उनको भी उनकी उपासना पद्धति का अधिकार मिल गया। ये है डाइवर्सिटी। अभी हमारे शहर महाकुंभ में, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है,
जरा खोज के दिखा दीजिए। संविधान तो गिनता है अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जरा जाइए खोज के दिखा दीजिए किसी एक के लिए कुछ अलग से नहाने की व्यवस्था हो, किसी एक के लिए कुछ अलग से कुछ करने की व्यवस्था हो, किसी को कुछ अलग तरह का टेंट मिला हो, किसी कुछ। हाँ, आपकी जो क्षमता है आप वहां जाइए। ये देता है हमारा जो हिंदू अवेकनिंग जिसकी बात हम करते हैं। इसकी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत कर रहे हैं। और जब स्वतंत्रता हमें मिली थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में स्थापना क्यों हुई कि भैया आजाद तो हम हो जाएंगे, गोरे वाले अंग्रेज चले जाएंगे, काले वाले ऐसे चीखते रहेंगे। वो मानेंगे नहीं इस बात को। वो कुतर्क के पहाड़ पर बैठकर अपने ऊपर जो अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसी को खारिज करेंगे। और किसने कहा कि राम की बात करने से इस देश के संविधान को जरा सा भी चोट पहुंचती है? राम की बात करने वालों ने इस देश के संविधान को सर माथे पर रखा। और क्यों? क्योंकि यह देश का संविधान उनका अपना बनाया हुआ, यह परिवर्तित होगा, जब जरूरत होगी तब संशोधन होगा। जीवन के प्रवाह में जहां जरूरत पड़ेगी बड़े संशोधन करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हुआ कि राम और संविधान इसको बात की जाए। और मोहन जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता 1947 मिली, किसको ऐतराज है? हर कोई जानता है अंग्रेज गुलाम करके गए थे। अब लेकिन क्या हम ये कहने लगे कि सावरकर जी को तो काला पानी मिला, नेहरू जी को नहीं मिला, तो इसका मतलब वो क्या, वो अंग्रेजों से मिल गए थे क्या? हर बार ये डिबेट होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां था। तो मैं पूछ रहा हूं ना कि काला पानी नेहरू जी को क्यों नहीं मिली? क्या वायसराय के साथ उनके कुछ दूसरे संबंध थे? ये ढेर सारे ऐसे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि आज जहां 75 वर्षों के बाद भारत खड़ा है, हम अपने स्व को जागृत करके यहां खड़े हैं। दुनिया आज हमारे मान को, सम्मान को पहचान रही है। हम उस प्रतिष्ठा के साथ खड़े हैं और उसमें राम मंदिर के निर्माण की वो ऐतिहासिक तिथि है। इसको कुछ लोग न माने, उन विघ्न संतोषियों की बहुत परवाह नहीं करनी है। उनको जो विमर्श करना है वो करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो लोग कुतर्क के पहाड़ पे बैठे हुए हैं, इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो कुतर्क क्या होगा? आई थिंक यू नो व्हाट विल इट बी? सोफिस्ट्री या अब्सर्डिटी? तो माउंट अब्सर्डिटी कह सकते हैं, इलॉजिकल कह सकते हैं। माउंट अब्सर्डिटी पे विवेक श्रीवास्तव बैठे, उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है वहां से।